कितने लोग पिछले हफ्ते आए थे? अपने हाथों को एक बार ऊपर करके दिखा दो। So how many of you came last week? Please raise your hands. आमीन। तो हमने पिछले हफ्ते जोना नबी की पुस्तक से शुरुआत करी थी। योना नबी की पुस्तक से, द बुक ऑफ जोना, हमने वहां से शुरुआत करी थी। So last Sunday we started off with the book of Jonah. हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। So we read chapter number 1. 1 के बाद क्या आता है? दूसरे अध्याय की पहली आयत पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुनना। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, भाई इंग्लिश में पढ़ेंगे। So we will be reading Jonah chapter 2. Pastor will be reading in Hindi, I'll be reading in English. ध्यान से सुने। योना जब मछली के पेट में था तो उसने अपने परमेश्वर यहोवा को प्रार्थना करी। So Jonah chapter 2 verse 1 says that Jonah prayed to the Lord his God from inside the fish. सब मिलके बोलेंगे आमीन। Let's all together say amen. योना को मछली ने खा लिया था। So a fish ate Jonah. योना मछली के पेट में था And Jonah was in the fish's stomach. और मछली के पेट में से वचन बताता है योना ने प्रार्थना करी। And over here the word of God says that in the stomach of the fish Jonah prayed. अपने पड़ोसी को एक बार हिलाकर कहो हम भी प्रार्थना करें। Turn to your neighbor and say that even we should pray. इससे पहले कि मैं आपको बिठाऊं, एक बात बताना चाहता हूं। Before I make you all sit, I want to tell you something. 2021 में क्या हुआ? So what happened in 2000 and एक बहुत मशहूर डाइवर ने पानी में डुबकी लगाई गहरे तक। so couple of years ago a very famous diver he dived in the water. उसके बाद क्या हुआ? एक व्हेल मछली ने उसको निगल लिया। And what happened that a whale it came and it swallowed him. और वो ऐसा बताता है कि जब वो उस मछली के पेट में था, And he said this that when he was in the stomach of that fish. ध्यान से सुनना और योना की स्थिति को समझना। वो कहता है जब मेरी आंखें खुलती थी तो भी काला नजर आता था, जब मेरी आंखें बंद होती थी तो भी मुझे काला नजर आता था। So listen carefully because we'll understand Jonah's situation. He said that when he opened his eye, he would see darkness. When he closed his eye, he would only see darkness. वो तकरीबन 1 मिनट तक मछली के पेट में था। And he was only for a minute in that stomach. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, But I want to tell you this. योना 3 दिन और 3 रातों तक मछली के पेट में था। That Jonah was in that fish's stomach for 3 days and 3 nights. इससे पहले कि हम आगे जाएं, Before we go ahead, क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें। let's all close our eyes. और मैं चाहता हूं जरा सोचें आप मछली के पेट में हो। And I just want you all to imagine that you are in that fish's stomach. खुली आंखों से भी अंधेरा दिखाई दे रहा है, That with your open eyes you're able to only see darkness. बंद आंखों से भी अंधेरा दिखाई दे Even रहा with है। your closed eyes all you see is उस darkness. स्थिति में योना ने प्रार्थना करी। In that situation Jonah prayed. क्यों ना कलीसिया हम मिलकर एक बार प्रार्थना Let करें। us all pray together, dear अपने church. हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, And raise your hand towards the heaven अपनी आंखों को बंद रखें। and keep your eyes closed. प्रभु जी हम इसी समय तेरे आगे आते हैं लॉर्ड फादर। Lord Father, we just come before you right now at this moment. परमेश्वर आज हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएं योना नबी की पुस्तक में से। And Lord Father, let us learn something new today from the book of Jonah. आज तेरे भविष्यवक्ता ने जैसे प्रार्थना करी थी, आज हम भी प्रार्थना करने वाले बन जाएं लॉर्ड फादर। The same way your prophet prayed, O Lord Father, the same way we are going to pray today, O Lord Father. मसीह यीशु के नाम में In मांगते the हैं। name of Jesus we सब pray. मिलके ऊंची आवाज में बोलेंगे Amen. आमेन। अब आया मजा आमेन का। बैठ जाइए अपने स्थानों पर। Please have a seat. जो विश्वास वाला आमेन होता है ना, वो अंदर आशीष देकर जाता है। So the amen that we say in faith that brings blessing. Be online and कुछ समय के लिए हम अपने आप को योना नबी की स्थिति पर सोचकर देखें। and for some time I want you all to imagine or to be in the shoes of Jonah. 2021 में मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो मछली के पेट में 1 मिनट के लिए था, So a couple of years ago I'm talking about that particular individual who's in the stomach of the fish for 1 minute. वो बताता है अंधेरा, आंखें बंद में भी अंधेरा, आंखें खुली में भी टोटल अंधेरा। And he stated that there was darkness no matter if he opened his eyes or closed his eyes. अब कलीसिया बात क्या है कि वो प्रोफेशनल डाइवर था And I want to tell you this one thing that he was a professional diver. और जिस एरिया में वो था वो व्हाइट शार्क्स का एरिया था। And the area that he was in, it was an area of white sharks. कहता मैंने पहली बात ये करी, मैंने आसपास हाथ लगाने की कोशिश करी उस मछली के शरीर में। कहता जब मैंने देखा वहां पे दांत नहीं है, मुझे पहले तो शांति मिल गई कि मैं शार्क के पेट में नहीं हूं। And he was really glad because he put his hand in that stomach. And the first thing that he rejoiced about was that there was no teeth. कहता मुझे लगा था शायद मैं अपने परिवार को कभी देख नहीं पाऊंगा। And he thought that maybe he could never see his family. कहता मुझे लगा था शायद मेरी जिंदगी इतनी है। And he thought that my life is over. उसके बाद क्या हुआ, उस व्हेल मछली ने बड़ा सा डकार लिया और उसे बाहर फेंक दिया। And what happened is that whale vomited and
spat him out. क्योंकि होता क्या है, व्हेल मछली वेजिटेरियन होती है, वो इंसान खाने के लिए बनी नहीं होती। And you know the interesting is that a whale fish is a vegetarian and it cannot eat fish. अब It वचन cannot eat बताता humans. है, वचन बताता है योना पहले अध्याय में कि एक मछली ने योना को निगल लिया था, 3 दिन तक 3 रात तक वो उसके पेट में था। And the book of Jonah in chapter 1 states that for 3 days and 3 nights he was swallowed by a fish. हम जरा सोच के देखें योना को क्या लग रहा होगा, And just imagine and let's just think what Jonah might be thinking at that moment. उसको क्या दिख रहा होगा, And just imagine what he might be seeing, क्या महसूस हो रहा what he होगा। might be feeling. मेरे हिसाब से मछली के अंदर सब कुछ स्लिपरी होगा, And I have this imagination that everything would have been slippery. शायद उसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो, And maybe he would not be able to see anything. लेकिन वचन बताता है कि उस परिस्थिति में खड़े होकर योना ने प्रार्थना करी। And the word of God said that being in that situation, he prayed. आज मैं पहली बात आपको बताना चाहता And हूँ, the first thing that I want to tell you मुझे today नहीं is, पता आपकी परिस्थिति में कितना अंधेरा है, and I don't know in your situation how much darkness is मुझे there नहीं right पता now. आप कितनी मुसीबतों में जकड़े हुए हो, I don't know what kind of difficulties you might be trapped मुझे नहीं in. पता दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, And I don't know what the world thinks about लेकिन you. अगर आपकी सांस चल रही है, But if you are able to breathe, योना नबी से एक बात सीखें, let us learn something new from the book of Jonah. हम प्रार्थना करें, That we must pray. हम प्रार्थना We करें, must pray. हमें प्रार्थना We करनी must चाहिए। continue to pray. आमीन। Amen. अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलो हमें प्रार्थना करनी Shake your चाहिए। neighbor and say that we must pray. पिछले अध्याय में हुआ क्या था, So what happened in the previous verse? परमेश्वर ने योना को बोला निनवे जा। So God told to Jonah that go towards Nineveh. निनवे बहुत बुरी जगह थी, योना को नहीं जाना, तो वो परमेश्वर से भागा। And Nineveh was a very bad place and Jonah ran away from God. परमेश्वर उसके पीछे पीछे भागे। And God ran after him. मैं आपको बताना चाहता हूँ कब तक हम परमेश्वर से भागेंगे, परमेश्वर आपके पीछे पीछे भाग रहा And है। I want to tell you this one thing, that how long will you run away from God? Because God is running right after तूफान you. आया, There was a storm. सारा जहाज सोचने लगा तूफान क्यों आया, शैतान ने करा, चलो प्रेयर करो प्रेयर करो प्रेयर करो। So everyone in that boat was worried why this storm is coming. Let us pray together. तूफान परमेश्वर की ओर से था। And that storm was through God. योना ने कहा मुझे फेंक दो पानी के अंदर, तूफान तुम्हें छोड़ देगा। And Jonah said to those people in the ship that throw me into the water and the storm will stop. और ऐसा ही हुआ। And that is what exactly happened. उस जहाज के लोगों को लगा होगा कि योना के लिए इतनी जिंदगी थी, शायद वो पानी में गिरा मर गया। And the people in the boat thought that Jonah's life was just this much. We threw him in the water and now he's dead. क्योंकि अगर आप एक चलते तूफान में किसी को जहाज से नीचे फेंक दोगे, उसको मरा ही समझोगे। Because if you throw somebody into the ocean when there is a storm, you would consider that person as dead. अगर मेरी आंखों के सामने कोई बड़ी सी मछली आए और रोहन को खा जाए, And in front of me, if a big fish comes and eats up Rohan, मेरे मन में सबसे पहली बात आएगी गया। and the first thing that's going to come in my thought is that he's dead. वही उन लोगों ने सोचा होगा कि योना की कहानी यहीं तक थी, इसने पाप किया अब ये मर गया। And this is exactly what the people on the boat thought. He committed a sin and now he is dead. हो सकता है आज आपके बारे में लोग सोच रहे हो आपने पाप किया, आपके जीवन में समस्या है, आप गए। And maybe people in this world might be thinking that you have committed some kind of a sin and you are in some kind of a problem and now you're dead. मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरी आयत में से, And I want to tell you from chapter 2 right now योना प्रार्थना करता है, that Jonah prayed. ध्यान से सुने। Listen carefully. मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली, अधिलोक के अंदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। Hallelujah. So here Jonah says that in the darkness, in the middle of the ocean, he prayed and the Lord heard his prayer. योना इस समय एक जानवर के पेट में था। And at this moment, Jonah was in the fish's stomach. ऑलमोस्ट वो मौत के किनारे पर लगा हुआ है, And he was right at the edge of death. लेकिन वहां पर बैठकर वो कहता है मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। And over there he states that I prayed to God and he answered me. मुझे नहीं पता आज आप किस परिस्थिति में हो, And I don't know what situation you might be in right now. दुनिया के लिए आपकी परिस्थिति बड़ी गंदी हो, And for the world, this situation might be a big thing. मैं आपसे कहना चाहता हूँ But I want to tell you this one thing, प्रार्थना करो। that pray. वो मौत के फाटकों में से भी आपकी आवाज सुनना He जानता will है। take you out of the mouth of death. आमीन। Amen. मछली के पेट में से उसने योना की सुन ली। And he heard Jonah's prayer in the fish's आप तो stomach. अभी मछली के पेट में भी नहीं हो,
Right now, you're not even in the fish's stomach. वो आपकी गाड़ी में भी आपकी सुनेगा, Even in your vehicle, God is ready to चर्च के answer. अंदर भी आपकी सुनेगा, Even in the church, God will answer. घर के अंदर भी आपकी सुनेगा, Even in church, God will listen to you. बाथरूम के अंदर भी अगर आप किसी समस्या में आओगे परमेश्वर आपकी सुनेगा। Even if you're in the bathroom and you're stuck with some kind of a trouble, He will listen to you. क्यों ना अपने पड़ोसी को देखकर कहो आओ प्रार्थना करें। Turn to your neighbor and say, let's pray together. मैं आज आपको आपका पहला पॉइंट देना चाहता हूं, अगर आपने अपने जीवन में लागू कर दिया आप बड़े से बड़े हालातों से बाहर आ सकते हो। And I'm going to share with you the point number 1 today, that if you implement in your life, you will be able to tackle bigger and bigger problems. कितने लोग तैयार हैं पहले पॉइंट के लिए? How many of you ready for the मैं first केवल point? उनको बताना चाहता हूं। I want to tell it only to them. आमीन Amen. आमीन। Amen. पहला पॉइंट, The first point, व्यक्तिगत प्रार्थना से छुटकारा आता है। that there is breakthrough in being alone with God in prayer. व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से छुटकारा आता है। That there is a breakthrough when you pray alone with God. अब इस बात को ध्यान से समझना, So let us understand this. परमेश्वर ने उसको कहा निनवे जा, And God told him that go towards Nineveh. वो पता नहीं किन लोगों के बीच में था लेकिन वहां से भागा। But we don't know what kind of situation or people he was with. He went towards Tarshish. जहाज में तूफान आया, लोगों ने पर्ची डाली, उसका नाम आया, वो वहां प्रार्थना नहीं कर पाया। And when there was a storm, the people on the boat, they took out chits. And his name came and they threw him in the water. उसने कहा मुझे फेंक दो। And he said, throw me. वो जब मछली के पेट में था उसने प्रार्थना करी। But when he was in the fish's stomach, he prayed. मैं आपको बताना चाहता हूं, I want to tell you this. जो प्रार्थना आप लोगों के सामने नहीं कर सकते, The prayer that you can't pray in front of people. जो प्रार्थना आप दूसरों के सामने नहीं कर सकते, The prayer that you can't pray in front of others. जो प्रार्थना पास्टर आपके ऊपर हाथ लगाकर तेल डालकर पानी फेंककर नहीं कर सकता, The kind of prayer that the pastor, when he prays and lays his hand and throws water on you, वो प्रार्थना आप अकेले में परमेश्वर से कर सकते हो। that kind of a prayer you must do alone when you are with God. आमीन Amen. आमीन Amen. आपके जीवन में बदलाव जबरदस्ती से नहीं आएगा। There is not going to be a forceful change in your life. कोई तेल उंडेलने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। There's not going to be a change in your life when somebody puts oil on you. कोई बिस्लेरे का पानी खरीद के किसी ने दूसरी बोतल में डाल दिया, आपको आत्मिक कहकर बेच दिया, पीने से बदलाव नहीं आएगा। If somebody takes a Bisleri water, puts it somewhere and says that this is spiritual water, there's not going to be a change. प्रार्थना से, व्यक्तिगत प्रार्थना से बदलाव आएगा। When there is an interpersonal prayer, there is change. आज मैं आपसे पूछता हूँ, And I want to ask you this. क्या आप प्रार्थना कर रहे हो? Are you praying? क्या आप प्रार्थना कर रहे Are you हो? praying? मत्ती 6:5 में लिखा है, Matthew chapter 6 says जब this. तू प्रार्थना करे When you pray, अपनी कोठरी में जा, go in your home, अपने द्वार को बंद कर close your door, और फिर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। and it says that pray to your God in secret, and in secret God will listen to your prayer and He will bless you. ये वचन हमने कुछ समय पहले चर्च में हम सबने रटा था, And this verse many of us have memorized. मेमोराइज किया था, We memorized एक this. दूसरे को सुनाया था। We spoke this आज verse मैं upon आपसे others. पूछता हूँ, And I want to ask you today, हम में से कितने लोगों ने इसको अपने जीवन में लागू how किया? many of you have implemented this verse in your life? ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। And this is said by Jesus Christ. प्रॉब्लम क्या है, हम जितने परमेश्वर में पुराने हो जाते हैं, जितना हमें समय हो जाता है परमेश्वर को जानते हुए, And what happens is that as we grow older as Christian, as we spend time in Christianity, हमें ऐसा लगता है अब हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है। what we start to imagine is that we don't need prayers anymore. कौन लोग प्रार्थना में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं? Do you know the people who struggle in prayer the most? जो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देख चुके हैं, Are those people who have seen big things done by God? मिनिस्ट्री वाली फैमिलीज, The people who are in ministry, क्रिश्चियन परिवार से लोग, those people who are from Christian प्रचारकों families, के बच्चे, the children who belong to preachers, जो लोग मसीह को 20-20 सालों से जानते हैं, the people who know God for the past 20 years. 20 मिनट उनके जीवन में प्रेयर नहीं होती। There is not even 20 minutes worth of prayer in their lives. प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य 100% परमेश्वर थे। Jesus Christ was 100% God, 100% man. अगर प्रभु यीशु मसीह ये कहते ना मैं तो खुद परमेश्वर हूं, मैं क्यों प्रेयर करूं, हम लोग मान भी लेते। And if Jesus would have said this, that if I am God, why do I have the need to pray? We would have believed it. आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है, Do you know that it is written in the word of God? लूका 22 में, कि वो अपनी रीति के अनुसार भोर के समय उठकर प्रार्थना के लिए जाता था। In Luke chapter 22, it's written that in the morning,
वो भोर के समय उठकर प्रार्थना के लिए जाता In था। the morning, he used to wake up and he used to go for prayers. आज मैं आपसे पूछता हूँ पिछले हफ्ते में, चलो जिंदगी तो छोड़ो, पिछले हफ्ते में हम में से कितने लोगों ने प्रेयर करी है? I have this question for you, that in the last week, how many of you have prayed? नीचे हाथ रखो, कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम संतुष्ट हैं? Are you satisfied with your prayer? क्या हमारा प्रार्थना का ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? Is the progress of your prayer going up or going down? तो इस बात को समझ लो, Let us understand this. अगर योना ने मछली के पेट में आने से पहले व्यक्तिगत प्रार्थना कर ली होती तो वो समस्या में ना होता। If Jonah would have prayed before he went away, this problem would not have come from his अब life. होता पता क्या है? Do you know what happens? मुझे कोर्ट जाना है, I have to go to the court मेरे काम फंसे हुए हैं, and my work is pending. मैं सुबह 4 बजे अलार्म लगाकर उठा, And I get up in the morning, मैं putting an प्रार्थना alarm. कर रहा हूँ, मेरे से प्रार्थना नहीं हो रही, And I'm trying to pray and I'm not able to pray. हेडफोन्स लगा के प्रेयर कर रहा हूँ, नहीं हो रही, And I'm trying to put my headphones and I'm trying to pray. ऊंची प्रेयर कर रहा हूँ, नहीं हो रही, I'm praying loudly but I cannot नींद आ pray. रही है, I'm feeling sleepy. मुझे एक्सरसाइज करनी है, I want to exercise, प्रेयर अच्छे से नहीं हो रही। but prayer I cannot do properly. फिर मेरे साथ क्या होता है, जब मैं कोर्ट में जाकर मेरा कोई काम फंस जाएगा ना, इतनी जोर से प्रेयर निकलती है ना, आय हाय हाय हाय। But you know what happens, that when I go to the courthouse and when I pray, the kind of prayer that I do is wonderful. मछली के पेट में जाकर तो हर कोई प्रेयर कर लेता है। When you are stuck in the fish's stomach, even you will pray. कुछ फाइल रुक रही है, चर्च के ग्रुप में डाल दिया, जितने क्रिश्चियन ग्रुप है सब में डाल दिया, मेरे लिए प्रेयर करो। Some file is stuck in the court and I'm putting in all groups, you know, that pray for me, pray for me, pray for me. हमारे साथ यही होता है। This is what happens to us. हम उस परिस्थिति में तो जैसे प्रार्थना करते हैं, उस परिस्थिति में जाने से पहले प्रार्थना क्यों नहीं करते? The kind of prayer that we do when we are in that situation, why can't we pray before we go into that situation? मुझे याद है हमारी फाइल अंदर गई थी कुछ काम के लिए, I remember my file had gone when मैं इतनी जोर से प्रेयर करने लगा, I started to pray so loudly. आसपास वाले लोग देखने लग गए। Even the people around me started to look at me. लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वैसी प्रार्थना क्यों नहीं होती? But when everything is going good, why can't we pray that same way? योना को जब निन्वे जाने से मन नहीं कर रहा था, उसको उसी समय प्रेयर करना चाहिए था। When Jonah did not feel like going to Nineveh, he should have prayed that time. शायद उसको मछली के पेट में जाना ही ना पड़ता। Maybe in that situation, he would not have the need to even. मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, I want to tell you this one thing. अगर आप आज से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, That if you start praying from today, बहुत सारी मछलियों का काम खत्म हो जाएगा, many fishes, you know, their jobs would be बहुत gone. सारे तूफानों को आपके जीवन में आना ही नहीं पड़ेगा, You won't even have to face so many storms in क्योंकि your life. परमेश्वर को वो चीजें भेजनी ही नहीं पड़ेगी आपको सिखाने के लिए, आप पहले ही सीख गए। Because God would have no need to send those storms in your life to परमेश्वर teach का you. वचन कहता है The word of God says कि अपने पहले प्रेम को याद करो। that remember your first love. पहले दिनों में प्रेयर कैसे करते थे, During the old days, how they used to pray, कैसे बैठकर आराधना में आंसू निकलते थे, how they used to, you know, worship, and how they used to कैसे cry, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का मन करता how था। they used to pray for others, and how they felt like praying for others. वचन कहता है अपने पहले प्यार को ना भूलो। The word of God says that do not forget your first अब इस love. बार अपने पड़ोसी को अच्छे से पकड़ो और उसको कहो पहले प्यार को ना भूलो। And hold your neighbor and say that do not forget your first love. पहले प्यार को ना भूलो। Do not forget your first love. अब आगे से बंदा कहते मैं सीमा नु नहीं भुलिया। पहले प्यार को ना भूलो। Do not forget your first love. परमेश्वर के प्यार को ना भूलो, अच्छे से पकड़ के बोलो। Do not forget the love of God. परमेश्वर में जो हमारा पहला प्यार था उसको हम ना भूले। God who was your first love, do not forget that love. जितने लोग इस चीज को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, ऊंची आवाज में बोले आमीन। All those people who accept this say amen. मैं आपको कह रहा हूँ तूफान में नहीं जाना, समस्याएं नहीं चाहिए, मछली की पेट में नहीं जाना, प्रार्थना करनी शुरू कर दो। If you don't want to be in the stomach of the fish, if you don't want storms in your life, then start praying. ध्यान से पढ़ेंगे योना दूसरा अध्याय 5वीं आयत। So we're going to be reading Jonah chapter 2 verses 5. ध्यान से सुनना, 5, 6 और 7। So 5, 6 and 7 from Jonah chapter 2. योना कहता है मछली के पेट में से, So Jonah says this in the fish's stomach. मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था, मेरे प्राण निकले जाते थे। एक किस्म से वो मौत, उसका आत्मा प्राण निकलने वाले, मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। 5th verse. And over here it says that the waters engulfed me up to the neck. The watery depths overcame me. Seaweed was wrapped around my head. I Amen. sank.
मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खोने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में आ पहुंची। आमीन। Amen. So it says over here that I sank to the foundations of the mountain. The earth with its prison bars closed behind me forever. But you raised my life from the pit, Lord my God. As my life was fading away, I remembered Yahweh. My prayer came to you, to your holy temple. मिलके बोलेंगे आमीन। Let's all say together, Amen. वह व्यक्ति मछली के पेट में है। And this person is in the fish's stomach. जरा सोचे, आंखें खुली में भी अंधेरा, आंखें बंद में भी अंधेरा। Just imagine when his eyes are open, there's darkness. When his eyes are closed, there is darkness. और उस परिस्थिति में खड़े होकर हम यहाँ देख सकते हैं वो आराधना कर रहा है। And in that situation, we see over here that he is praising God. मुझे नहीं पता आज आपके हालात क्या हैं। And I don't know what your situations are right मैं now. आपको आज का दूसरा पॉइंट देना चाहता And I हूँ। want to give you the second point for today's message. अपनी समस्याओं के भीतर में से परमेश्वर को आराधना दें। That praise him through your problems. अपनी समस्याओं के भीतर में से उसको आराधना That दें। even amongst your problem, praise him. पैसों की तंगी चल रही है, You have some financial issue. आराधना करें। Worship. बीमारी है, You have और illness. ज्यादा आराधना करें। That pray even more and worship even more and कोई praise him. परिवार में समस्या चल रही है, If you have some issue going on in your family, और आराधना करें। praise him. योना जब उसकी सांसें जा रही थी, वो कह रहा है मेरा प्राण निकला जा रहा था, उस समय मैंने यहोवा को के स्तुति करी और मेरी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंच गई। आमीन। And over here it says that when Jonah's life was fading away, he praised God and his praise reached the temple of God. मैंने देखा है होता क्या है, And I've seen what happens. लोग कलीसिया में नए नए आते हैं, People come to church विश्वास में नए नए आते newly. They हैं, come newly in उनकी in आराधना faith. फ्रेश होती है, Their worship is very fresh. जल्दी चर्च आ जाते हैं, They come to church early आंखें हाथ ऊपर होते हैं, and their hands are up. लेकिन धीरे धीरे वो एंड में चले जाते हैं। And slowly they start moving towards the धीरे back. धीरे उनकी प्रार्थना केवल व्हाट्सएप ग्रुप में रह जाती है। And slowly their praise only remain in WhatsApp groups. हल्की फुल्की समस्याएं लोग संभाल नहीं पाते, And small little situations they're not able to handle. लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, But I have seen such kind of people as well. चाहे समस्याएं बढ़ती जाएं, That no matter, even if their struggles उनकी increase, आराधना बढ़ती जाती है। their worship increases. वो प्रार्थना करते हैं, They start praying. प्रार्थना करते करते आराधना शुरू कर देते And हैं, while they are praying, they start praising God. परमेश्वर के नाम को उठाना शुरू कर And देते they हैं। start lifting up the name of God. चाहे योना वहां जहाज में प्रार्थना कर लेता, मुझे नहीं पता क्या होता, So I don't know what would have happened if Jonah would have praised God in the storm. लेकिन मैं ये चीज योना से सीखना चाहता हूं, समस्याओं के बीच में खड़े रहकर जब मछली के पेट में वो है, वो उसको खा चुकी है, वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है। धन्य है तेरा नाम, हालेलुया। But I want to learn this from Jonah's life, that in the midst of the storm, when he was in the fish's stomach, he began to praise God. आराधना को लोगों ने शो ऑफ का नजरिया बदल लिया है। So what has happened nowadays that people have used praise and worship as a show off. हम कभी-कभी एक परिवार को विजिट करने जाते थे, मैं और ब्रदर गगन। So me and brother Gagan used to visit a family. हम कॉल करके जाते थे। So we used to call them and we used to go बाय there. चांस हमने जब भी कॉल करके उनके घर जाना, So if we call them and if we go to their home, वे व्यक्ति एक ही पोजीशन में होता था, टीवी पे आराधना लगाकर हाथ ऊपर। and that person used to be in only one position. हाथ The TV ऊपर। was on, the worship was on, and his hands were हम up. उसको काउंसलिंग करने गए हैं, वो हाथ ऊपर। When we went to counsel him, his hands were up. हम हेलो बोल रहे हैं, हाथ ऊपर। When we wanted to say hello, his hands were एक up. बार गलती से हम फोन करना भूल गए, ऐसे ही बढ़ गए। One day we forgot to call him and वो we just निकर went पाके like that. नेटफ्लिक्स देख रहा है। He was in his shorts. देखो मुझे नेटफ्लिक्स से प्रॉब्लम नहीं है, I don't have any problem from मुझे Netflix. प्रॉब्लम है क्या हम आराधना दिखाने के लिए करते हैं, And I have a problem with, are we trying to show off when we are trying to worship? या फिर जब हम अकेले में हैं हमारे मन से निकलता है धन्य हो परमेश्वर। Or when we are alone, we praise God and say, thank God. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप मन से आराधना करेंगे, When we worship or when we praise with all of our heart, छुटकारे आपकी जिंदगी की ओर आ जाएंगे। you will have a lot of deliverance in your life. पौलुस और सिलास एक बारी लोहे के डंडों से उनकी पिटाई करी, रॉड से उनको मारा गया।
So once what happened that Paul and Silas, they were being beaten up by metal rods. जंजीरों में बांधकर उनको कैद कर दिया गया, ये वचन कहता है। That they were captured in metal chains and they were kept aside. वचन बताता है रात के समय क्या हुआ, उन दोनों ने परमेश्वर के भजन गाने शुरू करे। But the word of God says this, at night they were raising their hands and they भजन were गाने praising. शुरू करे। They started to praise. भजन गाने शुरू करे, They started to sing भजन गाने praises. शुरू करे। And they started to sing और वचन praises. बताता है ना ही केवल उनकी जंजीरें, लेकिन वहां पर जितने कैदी थे सबकी जंजीरें टूट गई यीशु के नाम में। So what happened according to word of God? All those, while they were worshiping, while they were praising, they are not only their chains, but everyone in the jail, their chains were broken. आमेन। Amen. जब आप आराधना करेंगे आपके परिवार की जंजीरें टूट जाएंगी। When you start praising God, when you start worshiping God, your chain and your family's chain will be broken जब down. आप आराधना करेंगे When you start worshiping आपके God, आसपास के लोगों की जंजीरें टूट the जाएंगी। people around you, their chains will start जब breaking आप down. मन से आराधना When करेंगे, you praise God with all of your जहां heart, दो या उससे अधिक मिलकर आराधना when करेंगे, 2 or 3 together start praising and worshiping God, परमेश्वर वहां पर स्वतंत्रता लेकर आएगा। God Himself will come over there. मुझे समझ में नहीं आता, लोग जब चर्च आते हैं I don't understand this one thing. When people come to church, लोगों की शक्ल ऐसे हो रखी होती है, people's faces are just dead. उनको इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखा दो वो सब कुछ बाहर आ जाएगा उनका। When we show them India and Pakistan match, they are full of energy. कुछ लोग कलीसिया आकर उनका मन ऐसे होता है कि क्यों हूं मैं, पैदा ही क्यों हुआ मैं। And some people, they come to church and they start contemplating why कभी am I कभी even मुझे here? ब्रदर संतोष पर तरस आता है Sometimes I feel bad for Brother कि वो Santosh ऐसी शक्लें देकर आराधना कैसे लीड कर रहे हैं। that he sees such kind of faces and how does he lead worship? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, But I want to tell you, जिस समय आपने परमेश्वर के उस अपनी बुरे हालातों में खड़कर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा लिया, आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आ जाएगा। that when in your bad situations you start praising and worshiping God, your situations will turn around. कभी करके देखें, Try this and do उसके this. स्वाद को चख कर देखें, Taste Him and see बुरे हालातों में खड़े होकर प्रार्थना करके देखें, that even in bad situations, stand up and start हाथ praying. उठाकर उसके नाम को ऊंचा उठाकर देखें, Lift up your hands and lift His name up in अपनी bad परिस्थितियों को situations. दूर लात मारे और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। That kick away your situations and just praise and worship Him. मैं आपको बता रहा हूं आपके बोझ हल्के हो जाएंगे, And I will tell you this one thing, that your burdens will be आप taken हल्कापन away महसूस and करेंगे, you will start feeling lighter आप छुटकारा महसूस and करेंगे। you will start feeling deliverance. आमीन। Amen. कितने लोग अभी महसूस करना चाहते हैं छुटकारे How many को? of you want to अपनी feel- आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। How many of you हालेलुया, want to feel deliverance? Lift up your हालेलुया, hands and praise God. Jesus. Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Father. I'll request Brother Santosh to come forward. We will sing धन्यवाद on D scale. अपनी आंखों को बंद रखें कुछ समय, जहां पर हैं वहीं बैठे रहें, खड़े होना खड़े हो जाएं। मैं आपको, अगर आप सच में आज अपनी परिस्थिति में रहकर परमेश्वर की पूरे मन से स्तुति करने के लिए तैयार हैं, आराधना करने के लिए तैयार हैं, If हम you are, उसके अनुभव को एक्सपीरियंस करेंगे इसी समय। no matter what situation you're in, if you're right now, if you're willing to worship God, you will start seeing a change in your situation, dear friends. कुछ समय सब परमेश्वर की उपस्थिति का जुड़ जाएं। Let's just all go into the presence of God at this moment. चर्च में आपको बताना चाहता हूँ, Church, I want to tell you this. जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, The God that we worship, उसी परमेश्वर की पौलुस और सिलास ने जब रात को आराधना करी, He's the same God that when Paul and Silas, when they worshipped Him, अपनी जंजीरों में बंधे रहकर जब उन्होंने आराधना करी, being tied up in chains when they worship God, सबके बंधन टूट गए यीशु के नाम में। everybody's chains were broken क्या मेरे down. पास यहाँ पर दो लोग हैं, दो लोग भी अगर आज एक मन होकर आराधना करने के लिए तैयार है, यहाँ पर आजादी आ जाएगी यीशु के नाम में। Is there even 2 people right now at this moment who want to worship God with all their heart? They will be freedom right now. चाहे आप जहाँ कहीं बैठे हैं इस समय, No matter where मैं you're आपको sitting, चुनौती देता हूँ and आज, I challenge you this, अगर आप एक मन होकर उसकी आराधना करने के that लिए with तैयार। one accord, if you worship God, योना ने मछली के पेट में से आराधना करी, that Jonah worshiped God in the fish's मौत के stomach, मुंह में रहकर आराधना करी, that even in death he praised और God, परमेश्वर ने उसको आजादी दे दी। and God freed him. आमीन। Amen. धन्यवाद
के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। कलीसिया अपने हालातों के बीच में ऊंची आवाज में योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? सच बताना, साथ वाला बोल रहा है इसलिए मत बोल देना। कितने लोगों ने महसूस किया जब अपने आराधना के बाद आंखें खोली कुछ बोझ निकल रहा है? How many of you felt the presence of God that when you prayed, a burden from your life has been taken away? Only those who really felt this, raise your hand. अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम कुछ आपकी आराधना में है। So if you're not able to feel something, then there might be something wrong with your worship. लेकिन अगर आपने सच्चे मन से अपने हालातों को साइड कर कर उसकी आराधना करी, आप एक हल्केपन को हमेशा महसूस करेंगे। But if you left something aside from your situation and you worshipped Him truly, you will always feel His presence. यहोशू जब जेरिको के आसपास घूम रहा था, When Joshua, when he was surrounding the wall of Jericho, वचन बताता है the word of God says, जब उन्होंने मिलकर एक जकारा लगाया, मिलकर उन्होंने जय जयकार लगाया, that together when they worshipped and when they praised God, जिन दीवारों के ऊपर जेरिको के लोगों को बहुत नाज था, so the wall that the people from Jericho was so proud about, जिस पत्थर के ऊपर उनका भरोसा था, the stone on which they had so much of faith जिस upon, पत्थर में उनका घमंड था,
the stone on which they had so much of pride. जय जयकार लगते ही वो पत्थर टूट The गए। moment Joshua worshipped God, it fell down. जब आप ऊंची आवाज में या जिस भी आवाज में विश्वास के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, When you praise God in faith and when you lift up His name, परमेश्वर के नियुक्त समय में आपके जीवन के आसपास जो दीवारें हैं वो भी गिर जाएंगी यीशु के नाम में। what will happen is that in your faith and in God's will, those walls that are surrounding you, they will एक break बार down and fall down. मिलके हम एक आवाज में बोलेंगे हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! कभी कभी जब मेरे जीवन में समस्या होती है, Sometimes when I am faced with problems in my मैं कहीं life, अकेला जाकर चिल्लाता हूँ, I go alone and I और shout परमेश्वर को पुकारता हूँ। and I shout out the name of God. मुझ में चाहे जो भी कमी रह गई हो, परमेश्वर ने कभी खाली नहीं जाने दिया। Whatever I lack, God fulfills in my life. मैं आपको आज का आखिरी पॉइंट और आखिरी वचन देकर फ्री कर दूंगा। And I will speak the last word and I will let you go. इसी अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, And in Jonah chapter 2 verses 10 it says, फिर यहोवा ने मछली को आज्ञा दी Then the Lord commanded the fish और उसने योना को सूखी धरती पे निगल दिया। and it vomited Jonah unto dry land. आमेन, Amen. आमेन। Amen. एक ट्रांसलेशन ऐसी कहती है इस वचन के बारे में। So my translation says this about, Some other translation says, some other translation says this. जब परमेश्वर का वचन मछली के पास आया, When the word of God came to the fish, इस बात को बहुत कम लोग समझ पाएंगे। जब परमेश्वर का वचन मछली के पास आया, when the word of God came towards the fish, मछली ने योना को सूखी भूमि में निकल दिया। what happened is that the fish vomited Jonah on dry land. आपकी जो भी मछली है, No matter what fish is there in आपकी your life, जो भी समस्या है, no matter what problem is there in your life, जिस समय परमेश्वर का वचन आपकी समस्या के ऊपर आ गया, the moment the word of God comes upon that problem or fish, आपके अंधेरे उजाले में बदल जाएंगे। your darkness will be turned into light. आपकी मौत जिंदगी में बदल जाएगी। Your death will become life. लोगों ने सोचा था अंत हो गई है, परमेश्वर बोलेगा शुरुआत हो गई है। What people have thought is now over would now लोगों को begin. लगा था मर गया, परमेश्वर कहेंगे अभी तो शुरू हुआ है। People thought you are dead, but now you will start living. लोगों को लगा था भाग गया, परमेश्वर कहेंगे अब तो मेरे हाथ में आया है। People thought that he ran away, but you will run जितने towards लोगों को God. विश्वास है ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन, Amen. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. सच में परमेश्वर आपकी मछली से, आपकी समस्या से 1 मिनट में आपको निकाल सकता है। Really, I want to tell you this, that God can make that fish vomit you out in just 1 minute. मुझे इस वचन से बहुत प्यार है। I love this verse a lot. जब परमेश्वर का वचन मछली के पास आया, मछली ने योना को सूखी जमीन में निकल दिया। When the word of God, when God's word came to the fish, he vomited Jonah on dry land. जिस व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा था जो पिछले साल मछली के पेट में 1 मिनट तक था, So the person that I'm talking about who was in the stomach of that fish for 1 उसको minute, पानी में निगल दिया था। उसको मछली ने पानी में ही निगल दिया था बाहर। that fish vomited him in the water only. लेकिन जब परमेश्वर का वचन योना की मछली के पास आया, योना की समस्या के पास आया, वो मछली उसको सूखी जगह तक छोड़कर आई यीशु मसीह के नाम में। Amen. When the word of God came to the fish, he didn't vomit him in the water. He vomited him out on dry land. परमेश्वर मछली का इंतजार नहीं कर रहे थे। God was not waiting for that fish. परमेश्वर योना के अंदर बदलाव का इंतजार कर रहे थे। God was waiting for a change to occur in Jonah's परमेश्वर heart. आपकी समस्या का इंतजार नहीं कर रहे। God is not waiting for your प्रार्थना situation. परमेश्वर को नहीं बदलती, God, the prayer that you do does not change God. प्रार्थना आपको बदलती है Prayer changes you. और परमेश्वर आपका बदलने का इंतजार कर रहे And हैं। God is waiting for you to change. मुझे नहीं पता आपकी क्या परिस्थिति है, I don't know what situation. लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला एक वचन आपकी मौत में जिंदगी लेकर आ सकता है। I don't know what situation you're in, but one word from God can change your situation. कुछ भी परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। There is nothing big for our God. इस साल हमने अपना पहला वन किंगडम स्कूल करवाया। This year we started our first One Kingdom school. कुछ लोग अभी यहाँ नहीं है लेकिन उस स्कूल में थे, वो भी नहीं है, ठीक है।
Many people are not here right now who are लेकिन there in the वो one स्कूल Sunday मैंने school. अकेले नहीं करवाया, आप सब ने मेरे साथ मिलकर करवाया। I didn't do it alone, but all of us did it together. जब मैं और भाई रोहन उस कैंपस को देखने गए थे, When me and brother Rohan went to that campus to see it, हम 1 लाख का बजट सोच के गए थे। we thought of 1 lakh budget. और मुझे भाई रोहन कह भी रहे थे कि पाजी देखना, आप सारा अपना पैसा मत लगा देना। And Rohan was saying this to me that do not put all my money वो over there. अपने अच्छे मन से कह रहे, थोड़ा सोच के लगाना, सोच के। And he said to me that think and then invest. हमने प्रार्थना करा We prayed और 9 दिन का स्कूल बुक करा दिया। and we booked a 9-day school. हमें लगा चलो लाख का 1.5 लाख हो जाएगा, And we thought that 1 lakh will become into 1.5 lakh. 1.5 लाख का 2 लाख हो जाएगा। 1.5 lakh will become 2 lakh. हमारा टोटल उस 9 दिन की ट्रेनिंग का बजट 9,84,000 रुपए आया। And what happened is that for that 9 days training, our budget was for 9 lakhs. पहले मैंने जेब में से 40 लगा दिए, I put 40,000 for my अपार्ट pocket. फ्रॉम गिविंग मैंने जेब में से 40 लगा दिए। So I put 40,000 for my pocket. उसके बाद apart from 20 giving. और लग गए। And then 20 more. मुझे लगा शायद नहीं आएंगे। And I thought maybe it's not going स्कूल to का happen. आखिरी दिन आने तक Till the last day of that school, 40 वापस आ गए, 40,000 came back. 40 वापस आ गए। 40,000 came back. स्कूल खत्म होने के बाद After the school got over, 20 भी वापस आए और परमेश्वर ने उम्मीद से ज्यादा वापस किए और बढ़कर वापस किए। अगले स्कूल कर भी वापस, अगले स्कूल के लिए भी बजट खड़ा कर दिया। Hallelujah. आमीन। When the school got over, God gave us so much that we can even start a next school. अभी कुछ दिन पहले मुझे 2,000 किसी ने भेजे। Few days ago, somebody sent me 2,000 कोई rupees. ग्रेजुएशन डे पर लड़की आई थी, हमारे चर्च से नहीं है। So on the graduation day, some girl had come. not मैंने from कहा our सिस्टर church. ये आपने क्यों भेजे? And I said, that sister, why have you sent this? कहती अगले स्कूल के लिए। And she said, this is for the next school. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आपकी जरूरतों को आपसे ज्यादा जानता है। God knows your needs more than you know it. और इतना नहीं, राशन भी बचा हमारा, And you know what? Even our ration was saved. हमने बांट भी दिया। And we distributed क्योंकि it. परमेश्वर हमें कमी में नहीं, हमें बहुत आयत में छोड़ता है। But even in our lack, God fulfills 3 all our चीजें, heart's 2 desires. चीजें जो हमें करनी है, तीसरी चीज अपने आप हो जाएगी। 2 things we must do, and the third thing will happen on its own. मैं आपको दोबारा लास्ट टाइम कह रहा हूँ, व्यक्तिगत प्रार्थना करो। And I want to tell you this for the last. घुटनों पर आओ। I want to tell you this one thing, that have an interpersonal आंसू prayer. निकलते हैं तो निकलने दो। Go on your knees and start weeping एक and praying बच्चे God. की तरह अपने पिता के पास जाओ, Go to God like a child आराधना करो। and worship Him. समस्या के बीच में खड़े होकर आराधना Even in the करो। midst of trouble, worship Him. कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है टेंशन में, Do not worry about anything, what you'll eat and what you'll wear. प्रार्थना करो, आराधना करो। That pray and worship Him and praise Him. कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके पास आकर आपको आजादी You don't देगा। have to go anywhere. God will come और जब Himself to you. परमेश्वर का वचन आपकी समस्या के ऊपर आएगा, वो आपको आपके रास्ते में वापस छोड़ कर जाएगा। When the word of God comes upon your problems, that problem will flee. कितने लोग ये अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? How many of you want to experience this in your life? क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Let's stand and let's pray. मुझे नहीं पता आप किस मछली में हैं, I don't know what fish you are in right now. मुझे नहीं पता आपके जीवन में कितना अंधेरा है, I don't know how much of darkness you are in right now. मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, मुझे सच में नहीं पता। I don't know who is saying what about you and where they are saying what about you. मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ But I want to tell you this one thing, कि आपकी बात परमेश्वर तक पहुंच रही है। that your prayer is heard by God. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। Raise your hand towards the heaven. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर, हम तेरे आगे आते हैं इस समय लॉर्ड फादर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हमारी जिंदगियों में जो परमेश्वर योना को मौत से बाहर ला सकता है, वो परमेश्वर आज मुझे और आपको बाहर लाएगा यीशु के नाम में। मुझे नहीं पता चर्च आपके हालात क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज योर सिचुएशन। मैं बस इतना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर ऐसा है, वो आपकी मछली को एक आज्ञा देगा और वो आपको सही जगह पहुंचाएगा। इसी समय अपनी हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने मुंह से प्रार्थना निकालें, धन्यवाद निकालें, परमेश्वर की स्तुति निकालें। मुझे नहीं पता कितना कर्जा है आपके ऊपर, मुझे नहीं पता कौन सी बीमारी है आपके ऊपर, मुझे नहीं पता क्या समस्या चल रही है, मुझे नहीं पता घर पर क्या चल रहा है, रिश्तेदारों में क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर आपकी मछली में से भी आपको देख रहा है और आपको सुन रहा है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है, उसको आपको देखने के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऐसा परमेश्वर है जिससे भागकर आप मौत में जाकर भी उससे दूर नहीं जा सकते। क्यों ना उसको स्तुति दें, क्यों ना उसको आराधना दें। हालेलुया।
से। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। एक बार हाथों को उठा के, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।